السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک و انزلته فی کتابک و علمته احد من خلقک و استأثرت به فی علم الغیب انک انت تجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا۔ ایمانیات ان رزق ہمارا یہ 30th لیکچر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ اللہ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، اللہ کی باتیں بڑی ہی گہری ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے نا واضح طور پہ وہ نظر آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اے ایمان والو، تنبیہ کر رہے ہیں تمہارے بہت سے احبار اور رہبان جو تمہارے پیشوا ہیں، جو تمہیں گائیڈنس دیتے ہیں تمہارے دین کے اندر، جو تمہیں آگے لے کر چلتے ہیں، جن کے تم پلو پکڑتے ہو۔ پلو تو ہمیں پکڑنا چاہیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پلو تو ہمیں پکڑنا چاہیے قرآن کا، پلو تو پکڑنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم پکڑ ہی نہیں سکتے، کہ ہمیں تو پکڑنا آتا ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اللہ کہتے ہیں میں تیرے بہت قریب ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے الا لیقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو پھر جس کے تم پلو پکڑتے ہو، ٹھیک ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتا ہے باطل طریقے سے، اور صراط مستقیم نہیں دکھاتا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سیدھے راستے، صراط مستقیم جو سیدھا سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے، اس کے اپوزٹ تم کو لے کے جائے گا۔ یہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، خود بھی جہنم میں جائے گا، تیرے کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ تم سے جو لیتا ہے نا، کھاتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ اور یہاں پہ لفظ کون سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا؟ کثیرم، کثیر۔ تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں، آپ دیکھ لیں کیا حالات و واقعات ہیں، کیا یہاں پہ چل رہا ہے، کیا دکانداریاں لوگوں نے بنا رکھی ہوئی ہیں، اور کس طرح لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی دوسرے کے ایمان کی کمزوری، دوسرے کے ایمان کی کمزوری بلکہ ایمان کا نہ ہونے کا ہی فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو چاندی جمع کرتے ہیں، سونا جمع کرتے ہیں، ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، پھر اس کا چاندی اور سونا، اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، تم اللہ کے راستے میں تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دو۔ خوشخبری کس چیز کی مل رہی ہے؟ دردناک عذاب کی۔ اللہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان کو خوشخبری دو جنت کی، ان کو دردناک جہنم کی خوشخبری دو۔ اللہ کہتے ہیں یوم تقویٰ، اللہ کہتے ہیں وہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر انہی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقویٰ بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان جو ہے نا تپائے گئے جہنم کی آگ جس کا ٹمپریچر 1,37,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس کے اندر ان کو تپا کے، ٹھیک ہے، ان کی پیشانیوں کو، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟
ठीक है ना। हाजा मा कनज तुम ली अनफुसिकुम, ये था वो जो तुम अपने लिए जमा करते थे। फजुक्कु मा कुन तुम तकनिसून, चख इसको जो तुम जमा कर रहे थे। अब यहाँ पे एक बात आपको पता है कि सोने के ऊपर ज़कात है। 7 तोला सोना, 7 तोला सोना, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। 7 तोले से ऊपर एक माशा भी ऊपर हो जाएगा तो फिर 7 तोले के ऊपर पूरी की पूरी ज़कात होगी। ज़कात किस तरह होगी? 2.5%। किस तरह? जो उस वक़्त रेसाल हो जाए, जो मार्केट का रेट हो, ठीक है, उस रेट के मुताबिक आपने उस सोने की कैलकुलेशन करके 2.5% उसका जो है अल्लाह की राह में इस सोने की ज़कात को देना है, ठीक है। और इसी तरह आपको चांदी है, चांदी के ऊपर भी इसी तरह ही ज़कात है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक बात अपनी बहनों से करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों के लिए सुनने वाली बात है। शादी ब्याह में आम तौर के ऊपर बच्चियों को सोना मिलता है, पेरेंट्स की तरफ से भी आता है और ससुराल की तरफ से भी आता है, ठीक है। वो जितना भी हो, 10 तोले हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, हर बंदा अपने ये, क्योंकि सोना का बेसिकली ये हमारे यहाँ शादियों के अंदर बच्चियों को दिया जाता है और ये हमारी आज से नहीं है, हमारी मतलब लाइक सदियों से ये रूटीन चली आ रही है। अब खावंद का कारोबार है नहीं है इतना, ठीक है। खावंद जो है वो इतना कमाता नहीं है, वो बेचारा खुद मिस्कीन है। मिस्कीन का मतलब है वो इतना भी नहीं कमाता कि अपने घर का खर्चा पूरा कर रहे, और ख़ातून खाना के पास जेवर मौजूद है। समझ लगी मेरी बात की? वो उसने लॉकर में रखा हुआ है, तो वो ख़ातून खाना ने जो जेवर संभाल के रखा हुआ है ना, तो फिर फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उसके लिए खुशखबरी है एक दर्दनाक अजाब की, ठीक है ना। योम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, इन लॉकरों के अंदर जो तुमने सोने के जेवर और ये सोना रख चुका है, इन्हीं सोनों को, इसी सोने को, ठीक है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम की आग में तपाएंगे। फतुक वाबिहा जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, ठीक है ना, और वजिबाहुहुम व ज़ुहूरुहुम व जुनूबुहुम, उनकी पेशानियों को, पहलुओं को और पीठों को दागा जाएगा, ठीक है। तो फिर वो कहेगी जो मेरे पास तो थे ही नहीं, मैं कोई पैसे थोड़ी कमाती थी, ये तो खामद के ज़िम्मे नहीं है, सोना तेरा है। खामद अगर तो खामद इस चीज़ को ऑन करता है, भी तेरे पास तो सोना है, इसकी ज़कात मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है, मैं इसकी ज़कात तुम्हारी तरफ से अदा करता हूँ, या वो अपने उतनी जो ज़कात बनती है अपनी बीवी को पैसे देता है और वो जो है ना अल्लाह की राह में वो खर्च कर देती है, तो दैट्स गुड, वो बीवी की तरफ से अदा हो गया, क्योंकि मालिक तुम हो सोने की, हक महर में मिला है, तुम्हें गिफ्ट दिया है, इसकी मालिक तुम हो, तो ज़कात भी तुम्हारे ज़िम्मे है, खामद के ज़िम्मे ज़कात नहीं है। अगर वो इनकार कर दे भी मैं नहीं ज़कात देता, भी तुम्हारा सोना तुम खुद ज़कात दो, ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा। अब वो क्या करे? फिर वो ये करे, ठीक है, अगर उसके पास 20 तोले सोना है, उसके ऊपर ज़कात जो है ना, ठीक है ना, से अगर 20 तोले सोना है तो आजकल तकरीबन 2 लाख रुपए तोले का सोने का रेट है, ठीक है। तो 20 ज़रबे 2,25,000 40, और ये तकरीबन 45 लाख रुपए बन गया। 45 लाख रुपए के ऊपर 2.5% को ज़कात निकालो ना, तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये 2 लाख रुपया तुम पता क्या करोगी? आप अपने सोने को बेचो, सोने को बेचो, बेचने के बाद 2 लाख रुपया साल के बाद इसकी ज़कात अदा करो, और फिर हर साल इसकी ज़कात देती रहो हत्ता के ये 7 तोले से कम हो जाए। जब ये 7 तोले से कम हो जाएगा तो फिर तुम्हारे ऊपर ज़कात नहीं होगी, अदरवाइज यू हैव टू गिव द ज़कात ऑफ दिस सोना। समझ लगी मेरी बात की? बनाने का तो बड़ा शौक होता है, ठीक है, और आगे बाप को भी, खामद को भी लगाया होता है, जी मुझे ये चाहिए, तो जो ज़कात किसने देनी होती है? या तो फिर खामद से कहो कि मुझे ना हर साल इसकी ज़कात भी देनी है। और ये कि जी घरेलू सोने के ऊपर जो है ना वो ज़कात नहीं होती, जो बाजार में सोना पड़ा होता है उसके ऊपर ज़कात होती है, दोनों के ऊपर। जब ये निसाब को पहुंच जाए, और निसाब 7 तोला है, तो 7 तोले सोने के ऊपर एक माशा भी है, तो
पूरे 7 तोले के ऊपर आपको ज़कात, अगर इससे कम है तो ज़कात नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अदरवाइज़ यही सोने जो है ना ये गले का तोक बन जाएंगे। ठीक है ना, और इससे जो है ना हमारी पीठें और हमारी जुबीनें और हमारी जो है ना ये पहलू जब दागे जाएंगे तो फिर पता लग जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम, ठीक है, हम जो है इस ज़कात के इस मसरफ़ को अदा कर सकें। और इसी ही तरह जो इंसान कमाई करता है, साल बाद जो कमाई करता है, जो उसके घर के खर्चे निकलने के बाद कोई जो उसके पास पैसे बचते हैं और वो 1 साल तक उसके पास वो अमाउंट मौजूद रहे, 1 साल तक से मेरे पास 1 लाख रुपया है आज, तो वो 1 लाख रुपया पूरा 1 साल मेरे पास मौजूद रहे तो फिर उसके ऊपर 2.5% ज़कात होगी। ठीक है, इसी तरह आपके कारोबार हैं, कारोबार के अंदर आपके माल लगा होता है, आपकी एक सर्कुलेशन चल रही होती है, बैंक में पैसे पड़े होते हैं, बैंक में आपके पैसे भी जो है ना वो कभी निकल रहे होते हैं, कोई दाखिल होते हैं, तो उसके फिर ना आपने 12 महीने का एक एवरेज निकाल लेना। उस एवरेज के ऊपर जो 2.5% बनेगा वो आपने ज़कात देनी है। और ज़कात के मुसारिफ़ कौन कौन से हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी सूरह तौबा के अंदर 8 मुसारिफ़ ज़कात के बयान किए हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने जा रहे हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।